हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द 8th मॉड्यूल ऑफ एक्सटेंशन। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अर्लियर वी हैव कवर्ड फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन, all the important topics related to it, and then important topics related to fundamental of communication, and then we were covering research methodology. So all the links of these modules are available in description box, so you can go and you can start revising your notes from starting from module 1. So today continuing our research methodology part, earlier we have covered science and common sense, 4 methods of knowing, aim of science, research, types of research, characteristics of research. Then in types of research we have covered experimental, laboratory and field experiments, non-experimental, ex post facto, difference between experimental and ex post facto research design, types of research design and purpose of research design. So this part was very important, and in ARS exams, in interviews, in your SRF exam, in JRF exam, many questions come from these modules. So I have covered in detail with examples, so you can visit and see those modules. So today we are going to cover measurement. Very important part again. What is its definition and the types of measurement? There are generally 4 types of measurement: nominal, ordinal, interval and ratio. And if you are good in measurement and if you understand the concept of measurement, then you will be very good at collection of data, classification of data and analysis of data also. So this module is going to be a very important for especially for research scholars and those who are preparing for ARS and in extension or social science related areas, right? So nominal, ordinal, interval and ratio scale we will see. We will look into the properties of these 4 measurement scales, and then difference between nominal, ordinal, interval and ratio scales with examples we will look into it. So let's get started. So first we will see what is measurement. ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है? सो मेजरमेंट इज असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स. सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. So according to these rules, you are assigning certain numbers to your events, to your objects, so that you can quantify the event. ठीक है, कोई इवेंट या कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं विलेज पे, फार्मर्स का डेटा लेते हैं. सो उसको अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, हम उनको नंबर्स देते हैं, असाइन करते हैं, और उन नंबर के आधार पे हम कोशिश करते हैं क्वांटिफाई करने की, ताकि हम कुछ एनालिसिस, कुछ डिडक्शंस ड्रॉ कर सकें. ठीक है, अ नंबर इज अ न्यूमरल विद क्वांटिटेटिव मीनिंग. Thus, numeral is a symbol with no quantitative meaning and becomes number when quantitative meaning is attached to it. So, हम क्या करते हैं? Quantitative number attach करते हैं. For example, farmer से कोई variety adoption का हम data लेते हैं, satisfied, not satisfied, highly satisfied, unsatisfied. तो 1, 2, 3 आप सभी क्वेश्चनर में देखते होंगे. तो हम 1, 2, 3 ये जो कर रहे हैं, ये क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उसका परसेप्शन कैलकुलेट कर सकें, हम इंडेक्स कैलकुलेट कर सकें और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि हमारी वैरायटी ने कैसा परफॉर्म किया है, लोगों ने अडॉप्ट किया है या नहीं. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सो रिसर्च में पूरा गेम ही इसका है मेजरमेंट का, कि कैसे आप मेजर करते हैं कोई इवेंट को या कोई ऑब्जेक्ट को. ठीक है, सो आवर रूल इज अ गाइड, मेथड, कमांड दैट टेल अस व्हाट टू डू. सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स दैट डिपेंड ऑन योर रिसर्च डिजाइन, रिसर्च टाइप व्हिच यू हैव अडॉप्टेड, अकॉर्डिंग टू दैट रूल you are measuring a certain object by assigning some numbers, so that you can quantify your data and you can deduce some certain conclusions or remarks. So it is known as measurement. ये clear हुआ आपको? Then purpose of measurement is to have information in the form in which variables can be related to each other. So we are collecting data on a set of variables. मैंने आपको earlier modules में देखेंगे तो बताया था there are independent variables and dependent variables. So we are looking into the effect of independent variables on dependent variables. So we will collect data on independent variables. So independent variables में हम data collect करते हैं और उसको quantifiable करने के लिए measurement की help लेते हैं. ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैंने और भी नोट्स लिए हैं. ये नोट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलिंजर और GL रे, सागर मंडल बुक्स, डिफरेंट बुक्स का कॉम्बिनेशन है और मेरी ही राइटिंग्स पे नोट्स हैं. ठीक है, सो देयर आर 3 पोस्टुलेट ऑफ मेजरमेंट, जो कि हमने 10th 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े थे. ठीक है, पहला पोस्टुलेट कहता है कि ईदर ए इज इक्वल टू बी और इज ए इज नॉट इक्वल टू बी बट नॉट बोथ. ठीक बात है, क्या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी के बराबर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में से एक ही कोई घटना होगी. ठीक है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये घटनाएं हैं, एक ही घटना होगी. अगर एक घटना होगी तो दूसरी नहीं होगी फिर. ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है. दूसरा पोस्टुलेट कहता है इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी. ऑब्वियसली ठीक है, मैथ्स की बातें हैं. देन थर्ड पोस्टुलेट कहता है इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर
ग्रेटर देन सी देन ए इज ग्रेटर देन सी। सिंपल से मैथ्स के 10th क्लास के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट इज नेसेसरी फॉर क्लासिफिकेशन, थर्ड पोस्टुलेट इज नोन एज ट्रांजिटिव पोस्टुलेट। तो इनका ये पोस्टुलेट बताने के पीछे रीजन ये है कि मेजरमेंट को समझने से पहले ये 3 पोस्टुलेट आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सो जनरली इन रिसर्च वी हैव 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब इसे याद रखिए, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इन मेजरमेंट के लेवल को, इनको स्केल भी कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, ठीक है, क्लासिफिकेटरी स्केल। सो ये जो स्केल है, मेजरमेंट है, एक ही बात है, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट करते हैं इन मेजरमेंट के स्केल्स के आधार पे, ठीक है। सो इन रिसर्च वी हैव 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ मेजरमेंट से हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट, यानी लोअर में हमें कुछ ही बातें पता चलेंगी, यानी वी विल बी एबल टू क्वांटिफाई आवर डेटा इन अ सर्टेन लिमिटेशंस। एज वी मूव फ्रॉम नॉमिनल टू रेशियो, हम अपने डेटा को और अच्छे एडवांस तरीके से या इन डेप्थ क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो लोअर टू हायर में अगर हम अरेंज करें तो फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज नॉमिनल, ठीक है, जिसको नॉमिनल मेजरमेंट या नॉमिनल स्केल भी कहते हैं। सेकेंड इज ऑर्डिनल, थर्ड इज इंटरवल, फोर्थ इज रेशियो। कभी कभी एग्जाम में सवाल ही इस तरह से आ जाता है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, सो आंसर विल बी नॉमिनल। हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, आंसर विल बी रेशियो। अरेंज करने को कहेंगे तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो फ्रॉम लोअर टू हायर। सो वन बाय वन वी विल सी, और मैं आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो ये बड़ा अच्छा मौका है, बिल्कुल समझ लीजिए मेजरमेंट क्या है। सो फर्स्ट इज नॉमिनल मेजरमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिफिकेटरी स्केल। तो कहीं क्लासिफिकेटरी स्केल मिलेगा, कहीं नॉमिनल मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्या हो रही है? नॉमिनल डेटा की हो रही है, ठीक है। सो द टर्म नॉमिनल मीन्स टू नेम, names are given to categorize with no assumption about relationship between them. This is also known as classificatory scale. Here the number are assigned to object or event which can be placed in mutually exclusive and exhaustive categories. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेंगे हम, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नॉमिनल स्केल क्या होता है। अभी तक क्लियर ये हो गया कि नॉमिनल में हम वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करते, हम क्या बात करते हैं, केवल अपने जो डेटा सेट है उसको नेम करते हैं, केवल नेम के सेक के लिए करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी आपको एग्जांपल से जब समझाऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप। उससे पहले हमें समझना है व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड व्हाट इज एग्जॉस्टिव, क्योंकि ये डेफिनेशन कहती है कि नंबर्स आर असाइंड टू ऑब्जेक्ट और इवेंट विच कैन बी प्लेस्ड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो पहला पोस्टुलेट मैंने आपको बताया वो है दैट ईच थिंग्स मेक्स द अदर थिंग्स इम्पॉसिबल, यानी एक घटना घट गई है तो दूसरी नहीं घटेगी, यानी ए इज इक्वल टू बी हो गया है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी नहीं होगा फिर, ठीक है। इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। नॉट एबल टू बी ट्रू एट द सेम टाइम और टू एग्जिस्ट टुगेदर, यानी दो घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती, एक हो गई तो दूसरी नहीं होगी, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव क्या होता है? इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल, जितनी सारी उसकी कैटेगरीज होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और इस तरह की घटनाएं ऐसी इंक्लूड करते हैं कि एक घटना यदि हो गई तो दूसरी घटना नहीं होगी। तो ये नॉमिनल मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड वी विल गिव अ नेम, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो अगर आप डेटा ले रहे हैं तो फार्मर से सबसे पहले आप देखते हैं, मतलब पूछते भी नहीं है, देख के ही पता कर लेते हैं, है ना। पूछने में कभी कभी ऑफेंड भी फील करते हैं फार्मर्स, अगर आप मेल फार्मर से पूछेंगे कि आप मेल हो कि फीमेल हो। ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये तो डेटा कलेक्शन करने की इतनी बट ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिसर्चर को, ठीक है। सो 1 इज फॉर मेल एंड 2 इज फॉर फीमेल। इफ 1 आपने किसी डेटा पे डाल दिया तो यानी अब वो 2 नहीं हो सकता, क्या तो मेल होगा क्या तो फीमेल होगा। अब एक थर्ड जेंडर भी आ गया तो 3 आप और कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। इनमें से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल समझ के, नॉमिनल का मेल फीमेल, रूरल या अर्बन, फार्मर या नॉन फार्मर, ठीक है। बास्केटबॉल प्लेयर्स असाइन नंबर, तो बास्केटबॉल के प्लेयर्स आप देखेंगे या क्रिकेटर्स के नंबर देखेंगे जर्सीज के 1 to 11, तो 10 नंबर जिसका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट में इतना खराब खेलता है कि 10वें नंबर का रैंक उसको हमने दिया, नहीं। 10 नंबर केवल असाइन किया है, 10 नंबर शायद सचिन तेंदुलकर का था, तो असाइन किया है उसको 10 नंबर, ठीक है। ऐसे सेकंड नंबर जर्सी जिसके पास है तो करेक्ट सेकंड नंबर जर्सी है, ठीक है। उसका और कोई मीनिंग नहीं है उस नंबर का, ठीक है। रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, डेटा से कोई मतलब नहीं है, केवल फॉर सेक ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव असाइन नंबर्स, ठीक है। मेल 1 फीमेल 2, रूरल 1 अर्बन 2, फार्मर 1 नॉन फार्मर 2, जस्ट सेक फॉर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। दैट्स व्हाई दिस स्केल इज आल्सो नोन एज क्लासिफिकेटरी मेजरमेंट, यानी जो नंबर आप
डेटा में डालते हैं वो केवल और केवल एक क्लास इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। इसीलिए ये लोएस्ट लेवल है, क्योंकि आपको केवल इससे ये पता चलेगा कि वो मेल था या फीमेल था, रूरल था, अर्बन था, फार्मर था, नॉन फार्मर था, यही पता चलेगा और ज़्यादा आप डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब समझ गए ना, नॉमिनल को बिल्कुल ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। अब नॉमिनल मेजरमेंट है तो आप क्या क्या डेटा के साथ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ओनली इंडिकेट द कैटेगरी, मैंने लिखा है नॉमिनल मेजरमेंट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। जेआर पे बार बार सवाल आता है। और एग्जांपल देखिए, जेंडर मैंने बताया, मैरिटल स्टेटस क्या तो मैरिड होगा या अनमैरिड होगा या डाइवोर्स्ड होगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कैटेगरी में आएगा तो दूसरा नहीं होगा, ठीक है। रिलीजन, रेस, हेयर कलर, कंट्री, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने एग्जाम्पल के साथ नॉमिनल मेजरमेंट को आपको क्लियर कर लिया। अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड आते हैं, अब हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट, जिसको हम रैंकिंग स्केल भी कहते हैं। ऑर्डिनल मेजरमेंट इज ऑल्सो नोन एज रैंकिंग स्केल। अब देखिए, अब थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, अब नॉमिनल से एक कदम आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। सो हियर द नंबर्स आर असाइन्ड टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट विच कैन बी प्लेस्ड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, एंड कैन बी ऑर्डर्ड इनटू ग्रेटर और लेस देन स्केल। अब हमने एक कदम आगे किया कि हमने उनको क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट में हमने उनको ऑर्डर्ड भी कर दिया, हायर और लोअर लगा दिए, लोअर टू हायर कर दिया, ठीक है। दैट इज postulate third is satisfied, यानी if A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C. Ordinal measurement is possible. Number are assigned to object to categorize them and to order them. Ordinal numbers indicate rank order and nothing more. Again, केवल रैंक आपको यहां से पता चलेगी, कौन कितना ज्यादा है किसी से ये पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना पता चलेगा कि A is greater than B. How much A is greater than B ये नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। आपको इतना पता चलेगा कि A इज ग्रेटर देन B और B इज स्मॉलर देन A, ठीक है। दे डू नॉट इंडिकेट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिए, ऑर्डिनल स्केल में डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। ये बार बार सवाल आता है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट डू नॉट हैव एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। अब आता है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट क्या है। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट है मैथमेटिक्स में, जैसे जीरो, अगर हम लिखते हैं किसी चीज की वैल्यू 0 तो मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि ये 0 है, मतलब सच में उसकी वैल्यू 0 है। व्हेन द 0 विल इंडिकेट द रियल एब्सेंस ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। 0 मीन्स अगर आपको स्कोर में, एग्जाम में, मैथ्स में 10 में से 0 नंबर आए तो वाकई में 0 नंबर आए, ठीक है, तो वो हम एब्सोल्यूट 0 पॉइंट कहते हैं। तो ऐसा यहां नहीं होता, यानी यहां 0 इंडिकेट नहीं करता। 0 का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो 0 है, ठीक है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 रखा जाता है। डू नॉट हैव एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता। हैव अनइक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन स्केल्स। अब क्या होगा कि A इज ग्रेटर देन B हमने कह दिया एंड B इज ग्रेटर देन C, तो B इज ग्रेटर देन C का जो दोनों के बीच में गैप है वो A इज ग्रेटर देन B के बीच में गैप जरूरी दोनों एग्जैक्ट होंगे नहीं हो सकता, ज्यादा कम भी हो सकते हैं। सो अनइक्वल डिस्टेंसेस याद रखिए एंड डू नॉट हैव एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। अब देखिए एग्जांपल से समझिए, टीवी प्रोग्राम्स हैं, टीवी प्रोग्राम्स को हमने कैटेगराइज कर दिया, जैसे मान लीजिए रामायण, शक्तिमान, है ना, शांति, अभिमान, ये सब कुछ पॉपुलर टीवी सीरियल्स में आपको बता रहा हूं। अब हमने इनको टीआरपी के बेसिस में रैंक किया, ठीक है। रैंक 1 to 5 आया, तो रामायण को रैंक 1 मिला, शक्तिमान को 2 मिला, शांति को 3 मिला, अभिमान को 4 मिला। ऐसा आपने रैंक किया अकॉर्डिंग टू टीआरपी एंड पॉपुलैरिटी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पॉपुलैरिटी, बट वी कैन नो हाउ पॉपुलर वन प्रोग्राम इज, बट वी नो सेकेंड प्रोग्राम इज लेस और मोर पॉपुलर देन प्रोग्राम 3। तो हमने केवल रैंक किया, कौन किससे कितना ज्यादा पॉपुलर है ये हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि रामायण इज मोर पॉपुलर देन शक्तिमान, शक्तिमान इज मोर पॉपुलर देन शांति, शांति इज मोर पॉपुलर देन अभिमान एपिसोड, ठीक है। जो टीवी प्रोग्राम्स को जब हमने कैटेगराइज किया, रैंक वाइज अरेंज किया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डिनल स्केल हो गया, ठीक है। अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लासेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, पारिक एंड त्रिवेदी स्केल है, वो कौन सा स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, रैंकिंग के काम आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनल यूज करते हैं हम कब, जब हम कोई चीज पूछते हैं, हाउ सेटिस्फाइड आर यू इन अवर सर्विसेज, ठीक है। कोई कंपनी पूछ रही है या कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, तो 1 2 3 4 5। सो अगर आपके डेटा में 2 है तो इसका मतलब वो अनसेटिस्फाइड है, डेटा में 4 है तो इट मीन सेटिस्फाइड है, वेरी सेटिस्फाइड है। तो ये आपने जस्ट कैटेगराइज कर दिया, एक रैंकिंग के लिए कैटेगराइज कर दिया, एक रैंकिंग के आइडिया के लिए, तो ऑर्डिनल हो गया, ठीक है। इसमें 2 बातें हम हमेशा याद रखेंगे, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है, डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, हैव अनइक्वल डिस्टेंसेज बिटवीन स्केल,
ऑर्डिनली ऑल्सो नोन एज रैंकिंग स्केल। इस तरह के सवाल बार बार ये आपको एग्जाम में आते हैं। तो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, मीडियन, परसेंटाइल, कोरिलेशन, कोफिशिएंट। ठीक है, तो दो चीजें अभी तक क्लियर हो गई। अब हम थर्ड स्केल में आते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल। अब एक स्टेप और आगे निकल गए हम। इंटरवल स्केल इज ऑल्सो नोन एज इंटरवल मेजरमेंट। इंटरवल स्केल हैज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, कैटेगराइज भी करेंगे, अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट in interval scale numbers are assigned to objects or event which can be categorized, ordered and have equal distances between scale. फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, तो 1 और 2 के बीच में जितना स्केल डिस्टेंस है वही 2 और 3 के बीच में भी है, वही 3 और 4 के बीच में भी है। यानी दो जो रैंक हमने किए 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वही 2 और 3 के बीच में भी है। यानी इंटरवल स्केल में जो इंटरवल्स हैं और जो स्केल वैल्यूज हैं दे हैव इक्वल डिस्टेंसेस, which was not true in case of ordinal। ठीक है, समझ गए ना अंतर। तो 0 point is set arbitrarily। अगेन 0 point को हम आर्बिट्रेरली सेट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगेन एग्जैक्ट 0 point नहीं होता। 0 point यहां पर एब्सेंस को अगेन डिनोट नहीं करता, वो केवल रेशियो में होता है। यहीं पर मैं बता दूं, अभी रेशियो में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर भी 0 का मतलब रिसर्चर अपनी सेक रिसर्च के लिए 0 रख लेता है कि मिनिमम है, लेकिन यहां पर भी 0 का मतलब रियल 0 डिजिट नहीं होता। ठीक है, इसलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर पॉसिबल है क्योंकि इक्वल इंटरवल स्केल्स हैं, इंटरवल डिस्टेंस है, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं हो सकता। एक एग्जांपल से समझिए, हमने कुछ लोगों का मैथमेटिकल एबिलिटी स्कोर निकाला, मान लो अपने क्वेश्चनर के बेसिस पे। सो ए गॉट 60 मार्क्स, बी गॉट 45 मार्क्स, सी गॉट 30 मार्क्स, डी गॉट 0 मार्क्स। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि ए हैज मोर मैथमेटिकल एबिलिटी देन बी, सी एंड डी। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी सेड दैट ए हैज ट्वाइस एबिलिटी देन सी। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सी के कंपैरिजन में ए की ट्वाइस है। ठीक है, बट उनके बीच में डिफरेंसेस इक्वल है, 60 45 15, 45 30 15। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल्स है ए और सी के बीच में। ठीक है, अगेन अगर आप देखें कि डी का 0 है, डी का स्कोर 0 है, उसने 0 स्कोर जरूर लाया है, पर हम ये नहीं कह सकते कि दैट पर्सन हैज 0 एबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल 0 मैथमेटिकल एबिलिटी, ऐसा तो नहीं है, थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन उस क्वेश्चन में कैप्चर नहीं हुई है। तो 0 डू नॉट हैव एग्जैक्ट 0 मीनिंग। ठीक है, रिसर्चर अपनी कन्विंस के लिए एक रेंज के सेट करने के लिए 0 करता है, तो इसको हम आर्बिट्रेरली कहते हैं। 0 point इज सेट आर्बिट्रेरली। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू कैन डू। एग्जांपल इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर रेशियो स्केल भी है और टेम्परेचर इंटरवल स्केल भी है। कैसे, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज दैट टेम्परेचर इज अ रेशियो स्केल और समवेयर इट इज रेशियो एंड इन सर्टेन केसेज इट इज इंटरवल। कैसे है अभी हम देखेंगे। एल्टीट्यूड मेजरमेंट फ्रॉम मीन सी लेवल हम देखेंगे। मेजरिंग टाइम अगेन इंटरवल स्केल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन क्या है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट आप लगा सकते हैं। इट इज नॉट द क्वांटिटीज दैट आर रेड, इट इज द इंटरवल, जो मैंने आपको बताया कि डिस्टेंसेस होते हैं। अब ये देखिए, ये समझिए, इस एग्जांपल से आप इंटरवल स्केल समझ जाएंगे। सो टेम्परेचर, इफ यू आर मेजरिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस और फारेनहाइट, सो इट इज एन इंटरवल स्केल। ठीक है, बिकॉज 0 इज नॉट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, टेम्परेचर कैन गो बियॉन्ड 0 ऑल्सो, -40 -20 भी जा सकता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रूम में कोई टेम्परेचर ही नहीं है। टेम्परेचर मिनिमम है, 0 है, पर टेम्परेचर जो है वो एग्जिस्ट तो करता है। 0 मतलब ये थोड़ा ना कि रूम में टेम्परेचर ही खत्म हो गया, टेम्परेचर है लेकिन वो मिनिमम में है। ठीक है, और उससे भी नीचे जा सकता है, 0 पे ही मिनिमम नहीं है, 0 से नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए इफ टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फारेनहाइट इट इज इंटरवल स्केल, एंड इफ इट इज मेजर्ड इन केल्विन तो ये रेशियो स्केल बन जाता है। बिकॉज 0 तब क्या रिप्रेजेंट करता है कि रियली तब लैक ऑफ थर्मल एनर्जी, वहां पर उस कमरे में या उस जोन में रियली थर्मल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाती है, सच में 0 हो जाती है। तो अगर आप टेम्परेचर केल्विन में नाप रहे हैं तो इट्स अ रेशियो स्केल, अगर आप सेल्सियस और फारेनहाइट में नाप रहे हैं तो इट्स अ इंटरवल स्केल। सो वेरिएबल लाइक हाइट, वेट, एंजाइम एक्टिविटी आर रेशियो स्केल। क्यों? हाइट मींस अगर किसी का हाइट 5.5 फीट है तो एग्जैक्ट उतनी ही है, उसको नापा जा सकता है। 5.5 मींस 5.5। वेट है किसी का तो उतना नापा सकता है। किसी का वेट 0 है तो सच में उसका वेट 0 होगा। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप डेटा ले सकते हो और ये रेशियो स्केल्स है। ठीक है, टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन फारेनहाइट और सेल्सियस इज नॉट अ रेशियो स्केल, इट्स इंटरवल स्केल, एंड इफ इट इज मेजर्ड इन केल्विन, और केल्विन में 0 टेम्परेचर दिखाता है कि सच में वहां पर टेम्परेचर ही नहीं है, लैक ऑफ थर्मल एनर्जी है, तो इसलिए वो रेशियो है। ठीक है, आई होप आपको ये
समझ आया होगा। तो अगेन इंटरवल स्केल में क्या याद रखेंगे, इंटरवल मेजरमेंट, इक्वल डिस्टेंसेस, 0 पॉइंट इज सेट आर्बिट्रेरली, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परमिशन बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यू कैन नॉट डू, 0 डू नॉट इंडिकेट एक्चुअल 0 बट इट डू नॉट इंडिकेट द एब्सेंस, बट फॉर सेक ऑफ रिसर्च इट्स इंडिकेट द रेंज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं रेशियो मेजरमेंट में, सबसे लास्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, यानी सब कुछ हो सकता है रेशियो में। ठीक है, इन रेशियो मेजरमेंट नंबर आर असाइन टू ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट विच कैन बी कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी नॉमिनल, ऑर्डर्ड कर सकते हैं, ऑर्डिनल, और इसमें 0 पॉइंट होता है रियल 0 पॉइंट, यानी रेशियो में 0 मीन्स एक्चुअल एब्सेंस ऑफ दैट डेटा। ठीक है, नॉन आर्बिट्री 0 पॉइंट। Ratio is the highest level of measurement. It has properties of nominal, ordinal, interval and has an absolute or natural 0 that has empirical meaning. यानी 0 means real 0. ठीक है, रेशियो के एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, और अल्थमेटिक ऑपरेशंस हो जाएंगे, क्योंकि जब सब कुछ रियल है तो सारा ऑपरेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब कुछ हो जाएगा। रेशियो स्केल रिप्रेजेंट एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, डिस्टेंस, ये एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के सारे आपको मीन, मीडियन, मोड सब लगा लीजिए, सेंट्रल टेंडेंसी के जितने मेजरमेंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकाल लीजिए। एग्जांपल क्या है, एडॉप्शन कोशेंट। एडॉप्शन कोशेंट आप क्वांटिफाई करेंगे। ठीक है, चट्टोपाध्याय ने दिया था, अगर 0 है, एडॉप्शन कोशेंट 0 आता है तो यानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अडॉप्ट नहीं की, यानी सच में 0 मीन्स 0, अडॉप्ट ही नहीं हुई टेक्नोलॉजी। 100 मीन्स 100% एडॉप्शन। तो ठीक है, तो जो हमारे इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स में जो वैल्यू आती है एग्जैक्ट आती है और वो इंडिकेट करती है सब कुछ। ठीक है, तो रेशियो। ठीक है, इन बिहेवियरल एंड एजुकेशनल रिसर्च मोस्टली नॉमिनल एंड ऑर्डिनल लेवल्स आर यूज, क्योंकि रेशियो लेना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा सब साइकोलॉजिकल या फार्मर्स या ह्यूमन बींग्स का डेटा होता है। तो ह्यूमन बींग का डेटा एग्जैक्ट नहीं होता ना, हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, हम कितना सेटिस्फाइड हैं मैं ये नहीं बता सकता किसी को। मैं ये कह सकता हूँ आई एम हाईली सेटिस्फाइड, पर मैं ये नहीं कह सकता आई एम 100 सेटिस्फाइड, आई एम 20 सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं कर सकते। हम उसको रिसर्च के लिए क्वांटिफाई करते हैं। तो सोशल साइंस में नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा ज़्यादा कलेक्ट होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट स्कोर्स आर बेसिकली ऑर्डिनल। ठीक है, द लैक ऑफ रियल 0 इन ऑर्डिनल स्केल इज नॉट अ सीरियस एज लैक ऑफ इक्वल इंटरवल्स। तो इक्वल इंटरवल्स होने बहुत जरूरी है अगर आप ऑर्डिनल डेटा सेट मिल रहा है आपको, या आप अपना क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों में अंतर समझ गए। तो हाईएस्ट कौन है, रेशियो, और मिनिमम कौन है, नॉमिनल। तो नॉमिनल में इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, ऑर्डिनेंस में इक्विवेलेंस एंड ग्रेटर देन, इंटरवल में इक्विवेलेंस ग्रेटर देन नो रेशियो ऑफ 2 इंटरवल्स। रेशियो में ये मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा कलिंजर से पॉइंट निकाल के रखे हैं, तो ये आप नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लें, अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें चारों का, तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, लेवल्ड नॉमिनल में यस, ठीक है, बाकी सारा नो। ठीक है, ऑर्डिनल में लेवल्ड एंड मीनिंगफुल ऑर्डर भी होगा, इंटरवल में लेवल्ड, मीनिंगफुल ऑर्डर एंड मेजरेबल डिस्टेंस भी होगा जो कि इक्वल होगा। रेशियो, लेवल्ड, मीनिंगफुल ऑर्डर, मेजरेबल डिस्टेंस एंड ट्रू 0 स्टार्टिंग पॉइंट भी चारों पॉइंट होंगे। तो इस टेबल से भी, अगर ये टेबल भी आपको याद रहा तो चारों के इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट भी लिख लेंगे, लॉन्ग आंसर भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे। ठीक है, एक और टेबल देख लीजिए। नॉमिनल में एग्जाम्पल आई कलर, ठीक है, नेम्ड करेंगे हम आई कलर को, ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रीन है, कैसा है। ऑर्डिनल में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, नेम्ड भी होगा, ऑर्डर भी कर पाएंगे। इंटरवल में टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, नेम्ड होगा, ऑर्डर कर पाएंगे, एंड इक्वल इंटरवल्स होते हैं टेम्परेचर में। रेशियो में हाइट होगा, नेम्ड होगा, ऑर्डर करेंगे, इक्वल इंटरवल भी होगा। 0 हाइट कहेंगे तो 0 हाइट होगी, ठीक है, ट्रू 0 वैल्यू जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली। एक और टेबल देख लीजिए ऐसे, नॉमिनल में देखिए नो नो नो, आपका ट्रू 0 और इक्वल इंटरवल, ऑर्डर नहीं है, कैटेगरी होगा यस। ऑर्डिनल में ऑर्डर एंड कैटेगरी यस, इंटरवल में ऑर्डर एंड कैटेगरी एंड इक्वल इंटरवल यस, एंड रेशियो में चारों यस। एग्जाम्पल आपके सामने है, नॉमिनल का मैरिटल स्टेटस, सेक्स, जेंडर, एथनिसिटी, ऑर्डिनल में स्टूडेंट लेटर ग्रेड, रैंकिंग, इंटरवल में टेम्परेचर, ठीक है, IQ, ईयर, रेशियो में एज, हाइट, वेट। ठीक है, इससे भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये मैंने 4 पॉइंट सोचा था, एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपके लिए कवर कर दूं। सो आई होप यू लाइक दिस मॉड्यूल। तो अब मैं स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी मुझे कि रेगुलर सर इसको लाइए, और हमें बहुत मदद मिली है, तो मैं बिल्कुल रेगुलर रहूँगा। हर हफ्ते आपको 2 या 1 वीडियो जरूर मिलेगा। तो आज मैंने मेजरमेंट कवर कर लिया है। अगला जो रिसर्च मेथोलॉजी का टॉपिक है, सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, हम उसे कवर कर लेंगे। तो रिसर्च मेथोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जगह हो जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन मैंने कवर कर लिया, कम्युनिकेशन कवर कर लिया, ऐसे हम डिफ्यूजन इनोवेशन कवर करेंगे, मैनेजमेंट कवर करेंगे, जेंडर कवर करेंगे, सब कुछ पूरा एक्सटेंशन के मॉड्यूल मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे हर हफ्ते कवर करके आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आपने यानी GL रे, कलिंजर, ये सारी किताबें पढ़ी और एक बार मेरे मॉड्यूल्स को ध्यान से सुन लिया, नोट्स ले लिया, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी
कॉन्सेप्ट में। सो आई होप यू लाइक दिस मॉड्यूल। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।